मैं हैरान हुआ देख के। लाइक छोटे छोटे बच्चे अमेरिकन बॉर्न अमेरिका में रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में था कि नहीं पाकिस्तानी तो सही नहीं होते, पाकिस्तानी बुरे। और वैसे भी अगर आप सोचो, अगर पाकिस्तान में आज हिंदू रहते होते मुसलमानों की जगह तो वो हेट करते। मैं तो नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल इंडिया के मीडिया की तरह है, लेकिन उधर भी काफ़ी इंडिया के लाइक अगेंस्ट बताया जाता है। जितनी भी जंगें दिखाई गई हैं उसमें यही बताया जाता है कि भाई पाकिस्तान जंग जीता था। और लुकिंग एट द हिस्ट्री के जैसे दो सिखों के एक्ट पे सही था या गलत था, उस एक्ट पे सारी ही कम्युनिटी को टारगेट कर दिया गया था 1984 में। ऐसे ही अब गांधी को किसी हिंदू ने मारा था तो सज़ा सिर्फ उसको मिली। राजीव गांधी को हिंदू ने मारा था तो उसको सज़ा से हुई, मगर जब सिखों ने जब मारा तो पूरे सिखों को सज़ा मिली। आज मैं गारंटी देता हूँ कोई मुसलमान मार दे, इससे बड़े दंगे नहीं होंगे इंडिया कि लाइक सारे मुसलमानों पे अटैक हो जाएगा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। हुसैन अशफाक के सिंध तो ने पाकिस्तान तो। भाईजान तुसी भी सलाम कर दो थोड़ी जी। अस्सलाम वालेकुम। और हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम भाईजान, सत श्री अकाल जी। तो मेरा जी नाम गुरप्रीत सिंह है जी। तो अज का पॉडकास्ट इस तुसी देख ही लिया है टाइटल, पर साडा जो ये पिछे असी कुछ होर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बारे मैं गल ये करना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों तो ना दुनिया ते बहुत कुछ वापर रहा है। तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤੇ 2020 ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਜਾਨਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਵਲੂੰਦਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨੋਰਮਲ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੈਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖਬਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮਤਲਬ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੇਟਰੇਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਟਰੇਟ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸ਼ੁਰੂ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੈਲਸਤੀਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੇਟਰੇਟ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਤੱਕ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੀ मैं सारे का वेलकम फिर एक दोबारा करदा। तो कोई भी थोड़ी कुछ भी आप भाईजान बोलना चाहें, आप शुरू कर सकते हैं या कमल शुरू कर सकते, या हैरी, जो भी आप में से। हाँ, पहले तो एक है जो हेटरेट की बात चली है, राइट। तो क्योंकि आप पाकिस्तान से हो, हम इंडिया से हैं, तो वहाँ से शुरू कर सकते हैं। अभी जो एक हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, और उसमें एक वीडियो सामने आई थी जिसमें एक किसी देश का, शायद ऑस्ट्रेलिया या किसी बाहर के देश से कोई गोरा आदमी था जो मैच देखने आया था,
और वो जो इंडिया की क्राउड थी वहाँ पे, आई थिंक गुजरात में था मैच, तो उनसे बात कर रहा था कि क्या सोचते हो तुम पाकिस्तान के बारे में, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आपने देखी भी है वो वीडियो। They think like animals. There was a rule of Pakistanis and they were doing very very bad terrorism to women of our India. तो उसमें वही था कि मुझे बड़ा ही वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगी है, स्पेशली कि चलो एक उसमें 2-3 बंदे थे जो बड़ी उम्र के थे। आजकल पॉलिटिक्स वैसी है कि चलो उनके मन में हेट आ गई, मुझे इतना बुरा नहीं लगा, शायद वो मुझे पता ही था कि उनके मन में है। जो बहुत ज़्यादा बुरा लगा उनमें एक कुछ 10-12 साल का बच्चा था और वो लाइक ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि सारे ही पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, कि वी इंडियंस हेट पाकिस्तानीज, ये वो लाइक वैसी चीज़ें कि अब मुझे उस वीडियो को देख के ये आया कि एक 10 या 12 या 14 साल का भी बच्चा हो कि उसके मन में इतनी हेट्रेड कहाँ से आ रही है, कि क्या वो घर वाले सिखा रहे हैं, स्कूल में सीखा, सोसाइटी है, न्यूज़ चैनल है। अब एक तो ये है कि चलो वो हमने इंडिया में देखा और नॉट जस्ट कि उस मैच में है, अभी हम जो इस टाइम पे इंडिया के जो हालात देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पिछले 8-10 सालों में वो चीज़ बढ़ी है कि थोड़ा पाकिस्तान के टुवर्ड्स हेट। तो पहली चीज़ तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान से हो, क्या आपने भी सिमिलर चीज़ें आपने लाइक स्कूल में या आपके भी दोस्त वगैरह हैं, तो आपने क्या ऐसी चीज़ें देखी हैं जहाँ पे इंडिया के टुवर्ड्स पाकिस्तान की आवाम में भी अगर हेट हो? थैंक यू। पहले तो मैं शुक्रिया कहूँगा सबका कि मुझे बुलाया इस टॉपिक पे बात करने के लिए। पहले तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जस्ट रेगुलर, तो थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में ही बताऊँगा। उससे पहले मैं पाकिस्तान के बारे में बात करूँ, एक मेरे दोस्त, आई थिंक गुरप्रीत जानता है जो की स्टोरी है, जो ने बताई थी, और वो भी मेरे दिमाग में है क्योंकि वो स्कूल में टीचर है, तो वहाँ पर काफ़ी इंडियन बच्चे आते हैं। तो आई थिंक कोई क्रिकेट का मैच था, कुछ चल रहा था पाकिस्तान इंडिया का, तो ऐसी बच्चों में बात हो रही थी पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच है। तो जो ने बताया हाँ मेरा भी ना लाइक मेरा फ्रेंड है पाकिस्तान से, तो और जो बच्चों का रिएक्शन था उस लाइक वो बोलता, मैं हैरान हुआ देख के, लाइक छोटे छोटे बच्चे और वो लाइक अमेरिकन बॉर्न, अमेरिका में रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में था कि नहीं पाकिस्तानी तो ये सही नहीं होते, पाकिस्तानी बुरे। तो ये स्टोरी कोई लाइक इंडिया की नहीं है, लाइक अमेरिका में रहते हुए भी लाइक उनके दिमाग में कहाँ से आ रही है। तो एक मेरे लिए भी शौक था, और ख़ासतौर पे जो के लिए, क्योंकि जो भी लाइक ये, क्योंकि वो तो जानता है सारी बातें, तो गुरप्रीत को अच्छी तरह जानता है, मेरे को जानता है, वो सबसे मिलता रहता है, तो वो मेरे को थोड़ा सोचने में थोड़ा उसने किया कि सच बोलूं तो मैंने भी उस एंगल से कभी सोचा नहीं है एक्चुअली, ये कुछ नया है, मुझे भी सुनने को मिला है, इंटरेस्टिंग है। तो जहाँ तक आई थिंक दैट के एक तो पॉलिटिक्स है, ठीक है, एक मुल्क की पॉलिटिक्स है कि लोगों को हेट डाला जा रहा है, ठीक है, वो चाहे वोट बैंक के लिए हो या और कुछ चीज़ और के लिए हो, वो तो है। दूसरा ये कि अगर आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता हो, ठीक है, आपको नई हिस्ट्री पढ़ाई जा रही हो, पुरानी हिस्ट्री को आपको मिटाया जा रहा हो, तो जब तक आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि सीरियसली बात है कि पाकिस्तान में मैं बड़ा हुआ, मुझे भी कोई एक पाकिस्तान साइड की हिस्ट्री पढ़ाई गई है, ठीक है। अब बड़े होकर जब मैंने खुद अपनी तरफ से लाइक नॉलेज हासिल करनी शुरू की, ऑनलाइन जाके देखा, तो फिर पता लगा कि क्या हिस्ट्री में क्या था, ठीक है, एक पाकिस्तान इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले की हिस्ट्री क्या थी, किस तरह से लोग साथ में रहा करते थे, ठीक है। तो वो मेरे लिए भी लाइक पाकिस्तान में रह के ख़ास तौर पर बचपन में मैंने नहीं सीखा। और स्कूल्स होते हैं कि मैं प्राइवेट स्कूल में गया था पाकिस्तान में, और जहाँ तक इस बुक्स की बात है, लाइक वो ऑक्सफोर्ड की बुक्स होती थी, है ना, तो ऑक्सफोर्ड की बुक्स में भी आई मीन दे वर स्टिल लाइक पाकिस्तान वर्जन के हिसाब से, राइट। तो आपका हिस्ट्री की बुक मेरे को जहाँ तक याद है, तो उसमें लाइक आपको थोड़ी सी लाइक ओल्ड हिस्ट्री बताई जाती थी कि भाई पुराना इंडिया में पाकिस्तान में क्या होता था, ठीक है।
फिर ये कि थोड़ी सी मुग़ल हिस्ट्री है, मुग़ल हिस्ट्री के बारे में उसके बाद इंफॉर्मेशन है, थोड़ी बहुत हिंदू राज उस टाइप की हिस्ट्री है, लाइक ज़्यादा डिटेल में किसी बारे में नहीं बताया जाता, ठीक है। और अगर जहाँ तक वहाँ पर पंजाबी हिस्ट्री है कि लाइक पंजाब के लोग कैसे रहते थे, वो बहुत ही, वो हम तो अपने बुजुर्गों से ही सुना है, सीरियसली, वो बुकों में तो नहीं पढ़ा, स्कूलों में काम, ठीक है, स्कूलों में नहीं पढ़ा। तो आई थिंक बचपन में आपको अगर आपको नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो जाहिर बात है आपका इन्फ्लुएंस सिर्फ मीडिया से आ रहा है। और आपने पाकिस्तान और इंडिया का मीडिया देखा होगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल इंडिया के मीडिया की तरह है, लेकिन उधर भी काफ़ी लाइक इंडिया के लाइक अगेंस्ट बताया जाता है। जितनी भी जंगें दिखाई गई हैं उसमें यही बताया जाता है कि भाई पाकिस्तान जंग जीता था, और लाइक एक साइड की स्टोरी बताई जाती है, कंप्लीट फुल हिस्ट्री नहीं बताई जाती। सही है। तुम्हें क्या लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि ये हेट्रेड टुवर्ड्स पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा है। क्योंकि जैसे तुमने बताया कि ये जेक तुम्हारा फ्रेंड है, उसको क्या पता हिस्ट्री के बारे में, अब उसका क्या रीज़न है कि पाकिस्तान को हेट कर रहा है। और वैसे भी अगर आप सोचो, अगर पाकिस्तान में आज हिंदू रहते होते मुसलमानों की जगह, तो वो हेट करते। अगर 70-80% हिंदू रहते होते और 20% मुसलमान रहते होते, तो वो वैसे ही हेट करते पाकिस्तान को, या इतने कत्लेआम भी होता जो हुआ है। आई थिंक हम अगर देखा जाए लाइक पाकिस्तान इंडिया की हिस्ट्री, ठीक है, इट्स कोई एक मुल्क नहीं था, लाइक उसमें मुख्तलिफ लाइक कौमें रहती थी साथ में, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे पीसफुली रहते थे, ठीक है। हाँ, मुल्क कई हिस्ट्री में ऐसे हालात हैं जहाँ पे लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है, फसाद हुए हैं, रिलीजन के ऊपर ख़ास तौर पर होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स 1-2-3 बड़े रिलीजन हैं और ख़ास तौर में उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जहाँ तक मुस्लिम्स और हिंदूज़ की देखा जाए, वो बहुत रिलीजन एक ऑपोजिट साइड में, ठीक है। कंपेयर टू सिखिज़म अगर आप देखे जाए, वो फिर भी इस लाइक सिमिलर है, इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप हिंदुज़म देखो और इस्लाम देखो, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो वो एक ईजी वे होता है कि आप लोगों को प्रोवोक करना। तो आई थिंक ऑफ कोर्स रिलीजन यूज़ होता है इन मामलों में। एक बात जैसे हुसैन भाई आपने की है कि जैसे कि आपने बोला कि एक तो ये भी रीज़न है कि हिस्ट्री उधर उस हिसाब से पढ़ाई जाती है, और दूसरा थोड़ा मीडिया का इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है। बट अभी जैसे मैं वही बात कर रहा हूँ, थोड़ा वैसे पंजाब में कम हेट्रेड देखा है, बिकॉज जैसे हमको पता ही है राइट कि पंजाब में थोड़ा सा हमारा काफ़ी ज़्यादा सिख कल्चर, जहाँ सिख रिलेटेड हिस्ट्री है पाकिस्तान से, तो थोड़ी कम है मगर देखने को मिलती है। अभी अगर आई डोंट नो, हैरी जैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि हैरी बेसिकली पंजाब में कम रहा है, देहरादून में ये पला बड़ा हुआ है। कि तुमने वहाँ पे कुछ क्या नोटिस किया और तुम्हें रीज़न क्या लग रहा है कि ये लाइक हेट्रेड कहाँ से, अगर उस बच्चे की बात ले लो कि वो 12-13 साल का अगर बच्चा है, अगर वो ऐसी चीज़ें बोल रहा है कि लाइक ऑल पाकिस्तानी आर टेररिस्ट, सभी बैड होते हैं, तो वो उसके और क्या रीज़न है। और मुझे लाइक ये भी लग रहा है कि हिस्ट्री में एटलीस्ट लाइक हेट तो नहीं लाइक दिखाते, ये बोल सकते हो कि एक ही तरफ का दिखाते हैं। अगर मैं इंडिया से हूँ तो शायद मुझे ये नहीं पता होगा कि क्या पाकिस्तान की साइड से कोई ऐसा हीरो था जिसने इंडिया को आज़ाद करवाने में हेल्प की हो देश को, लाइक वो चीज़ें हो सकती हैं, बट उसकी वजह से इतना ज़्यादा लाइक मन में हेट तो नहीं आएगा। तो शायद लाइक हैरी क्या कुछ तुम्हारे मन में। मेरा एक फ्रेंड होता था इंडिया में, मैं उस टाइम 10-11 साल का हूँगा, मुसलमान था वो, और मुझे नहीं पता कि ये मेरे दिमाग में किसने ये चीज़ें डाली। मुझे आज वो बात सोच के भी लाइक उदास होता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं ऐसा था। अब मैं उसके घर गया और मैंने उसको कहा कि कहीं खाने चलते हैं, भूख लगी है ना। उसने मुझे फ्रूट ला के दिया अपने घर से कि खा ले। वो लिटरली वो जब वहाँ से चले गया, मैंने वो फ्रूट फेंक दिया। अब मुझे हो रहा है कि मैं 10 साल की उम्र में क्या सोच रहा था कि इसका फ्रूट भी क्या है, कि जहर है इसके फ्रूट में या क्या है। और अब यही मैं अब मैं ये सोचता हूँ कि ये इतनी नफ़रत मेरे मन में क्यों आई थी उस टाइम।
और मुझे इसके कारण ज़्यादातर लगता है कि अब मूवीज़ वगैरह, न्यूज़ वगैरह, अब मूवीज़ जैसे अब गदर बनाई थी कि दिखा रहे हैं कि हम मुसलमान कैसे कि एक दूसरे मार रहे हैं हिंदुओं को, हिंदू बेचारे ज़्यादा अच्छे हैं कि कि अपनी रक्षा कर रहे हैं, मगर वो बेवजह मार रहे हैं। बॉर्डर मूवी आई थी, बॉर्डर मूवी अगर आपने देखी होगी, उसमें भी कैसे दिखाया कि वो तो मुसलमान तो सोच ही नहीं रहे हैं मारते हुए, मगर हमारा पूरा परिवार है, जैसे उनका कोई परिवार नहीं है। अब यही बातें अब हम यहाँ पे बाहर आते हैं, अब मुसलमान मेरे फ्रेंड हैं और मुझे ये होता है कि ये तो बिल्कुल अपने जैसे ही हैं कि अब रियलाइज़ होता है कि आगे कि मेरे मन में क्यों ऐसी नफ़रत कि उस टाइम थी। और ऐसे ही आई फील कि जैसे हमने तो वीडियो की बात की है वो बच्चे की कि अब कह रहा है वो कि कि सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, अब वही नफ़रत उसके मन में भी डाल दी है। मुझे इस तेरी स्टोरी बात से मुझे अपनी याद आई है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मेरे दिमाग में एक बात आई थी, बचपन की थी। हम 3 दोस्त होते थे स्कूल के, ठीक है। तो मैं रहता हूँ सिंध में, तो सिंध में जो सबसे ज़्यादा हिंदुओं की पॉपुलेशन है वो सिंध के अंदर है, अभी भी रहते हैं। तो मेरा दोस्त था वनेश कुमार ना, और मेरा एक और दोस्त था मुसलमान। तो हम एक ही सोसाइटी में रहते थे, और जो वनेश कुमार था वो और मेरा दोस्त ना साथ रहते थे। अब मैं उसको अपने दोस्त का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो दोनों पड़ोसी थे, ठीक है ना। और हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है। लेकिन जब वो वनेश कुमार के घर से ना वो अक्सर वो चावल सिंध में बहुत चावल बनते, तो चावल बना के भेजा करते थे, और वो खाते नहीं थे। वो उसको या तो ऊपर चिड़ियों को खिला दिया या उनको खिला दिया, वो खाते नहीं थे क्योंकि ये हिंदू के घर से आया है। और वो एक बचपन में मेरे दिमाग में, मैं तो बच्चा था तो मैंने इग्नोर करता था, लेकिन कुछ आई थिंक कुछ महीने पहले मैं सोच रहा था क्या टाइम होता था, कैसे लोगों के दिमाग में कैसी होती और थी। कहीं ना कहीं उस बच्चे के दिमाग में ये लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छी चीज़ की है कि मैंने इसका खाना ठुकरा के। और उस टाइम उसने मेरे से ही बात की थी वनेश ने ना कि ये क्या है, मैंने ऐसे ही होता है, मुझे क्या पता यार। बच्चे थे हम भी, ठीक है। हमें जो बड़ों ने बोला हम वही कर रहे थे, लेकिन अब वो बात सोचते हैं कि यार वो क्या सोचती थी। और अच्छा ये बात अब मुझे ये भी नहीं पता कि दिमाग में वो कहाँ से आई है बात उसके, कहीं ना कहीं से उसके दिमाग में डाली है ना कि यार ये हिंदू के घर से खाना नहीं खाना। तो ये बात कहाँ से आई है? ये ना भाईजान सिर्फ रिलीजन बेस्ड नहीं है, जैसे जात पात का है, भेदभाव है। आप भी जैसे बोलते थे कि अभी मुस्लिम कल्चर में कास्ट सिस्टम नहीं है, पर फिर भी आपने मेरे को एक दफ़ा बताया था कि पाकिस्तान में भी वैसे एक क्लास सिस्टम वाइज हैं कि कई मुस्लिम्स को छोटी जात वाला माना जाता है। जो है आपने बताया था, वो उसके बारे में बताएं कि वहाँ पे कास्ट सिस्टम है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि ये बड़ी कास्ट है या छोटी कास्ट है। हमारे इस्लाम में है कि अल्लाह यानी कि खुद इस्लाम में इसमें है कि कहते हैं कि हमने तुम्हें डिफरेंट ट्राइब्स में बनाया, ठीक है ना, मुख्तलिफ कौमों में बनाया, ठीक है ना, इसलिए कि तुम डिफरेंट हो, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बेहतर है कोई बुरा है, कि हर कोई डिफरेंट है। ये एक खूबसूरती होती है, ठीक है ना। एक सोसाइटी की खूबसूरती है कि डिफरेंट लोग से मिल रहे हैं, ठीक है ना, वो सोसाइटी को अच्छा बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आई थिंक ये ज़्यादातर हमारी सब कॉन्टिनेंट की थोड़ी हमारा कल्चर ऐसे है कि आई थिंक ये वहाँ से स्टार्ट हुआ है कि भाई जो पहले जैसे काम करते हैं, ठीक है, जो सफाई करने वाले हैं, ठीक है ना, अब उनको वो उसी स्टैंडर्ड से देखा जाता है कि यार ये सफाई करने वाले ये कचरा ही उठा सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते, और ये यानी कि छोटी ज़ात के। और जो कोई जैसे ट्राइब्स होते थे कि भाई एक फ़ौजी है, फ़ौजी का एक स्टैंडर्ड था, वो उसका अलग है, ठीक है, और एक किंग है, किंग का एक अलग स्टैंडर्ड है। तो इस्लाम, आई डोंट थिंक इस्लाम रिलीजन की वजह से इस मोर ऑफ हमारा सब कॉन्टिनेंट का कल्चर। बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी हमारे ये होता है कि ये एक इस्लामिक कंट्री है हमारे मन में, पर वो भी एक जैसी बाकी सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज हैं जो कल्चर चलता है कि जात पात के नाम पे होता है, एरिया वाइज हो जाता है, और जॉब की जो आपकी डेजिग्नेशन है उसके वाइज आपका इट डजंट जस्ट गो थ्रू कि रिलीजन का नहीं है, सिर्फ सारी जो और भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कम्युनिटी में, हर एक चीज़ में आपको एक डिफरेंशिएशन नज़र आएगा। और वो पाकिस्तान में भी है, और उसमें ये भी है कि अब तो कम हो गई है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी कि ये ज़ात का तो उससे साथ शादी नहीं करनी, डिफरेंट अपने ही ज़ात में शादी करनी है या इस टाइप का काम है। वो
एक कल्चरल थिंग है जो हमारे अंदर काफ़ी टाइम से, वो उसको निकलने में टाइम लगेगा, लेकिन एक है वो रियलिटी है। नहीं, अभी आपकी ये बात सुनते हुए ना आपसे बहुत ज़्यादा जो इंडियंस सुन रहे हैं वो कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये अभी भी हमारे यहाँ पे है कि एक पाकिस्तान में भी वो वैसे ही है राइट। सो इट्स मोर सिमिलर देन अभी इस पे वो जैसे कॉमन हो सकता है बात, पर मेरा यही है कि ये पैदा कैसे होता है, राइट। एक तो अभी यहाँ पे आके हम एजुकेट हुए हैं, राइट। अभी हम सोच सकते हैं कि हमने ऐसी भी गलत हरकतें हमसे हो गई हैं, हम सोसाइटी को ही ज़्यादा जिम्मेवार ठहराएंगे कि सोसाइटी में ही ये है वहाँ पे, है ना। और जैसे मैंने आपको बताया है कि आपकी जॉब डेजिग्नेशन से लेके आपका लास्ट नेम तक लगा के आप कौन सी ट्राइब से हैं, आप कौन सी, राइट, उस सब को ही लेके आपको सारा दिन जज ही होते हो आप, और उस जजमेंट की वजह से आपको कितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए वो मिलती है। आई मीन मैं आई डोंट नो कि हिस्ट्री क्या है बिहाइंड के कहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन अब जो भी बंदा उस सोसाइटी में पैदा हो रहा है वो ग्रो अप हो रहा है उस माइंडसेट के साथ, ठीक है। अब जो नई जनरेशन आती है वो पहले से बेहतर है, मैंने ये देखा है कि खासतौर में पाकिस्तान के मामले में कि नई जो जनरेशन है, जो आज की जनरेशन है, वो क्योंकि अब एक दूसरा सोशल मीडिया भी आ चुका है, ठीक है। अब आप फेसबुक में बैठे हुए आप इंडिया की भी पोस्टर देख रहे हो, ठीक है, अमेरिका की भी देख रहे हो, तो आपको एक ओपन दिखता है कि नई जगह दिखती है, एक नया माइंडसेट दिख रहा है, ठीक है। आपको एक पहले ये होता, मैं जब बड़ा हो रहा था तो कि पाकिस्तान में एक ही चैनल होता था PTV, तो उसमें जो 9 बजे की खबरों में आता था वही सब कुछ सच मानते थे कि भाई यही हो रहा है ठीक है। लेकिन अब ये है कि आपके पास, आप अपने पास क्यूरियस माइंड अगर आपके पास, तो आप कहीं पे भी पूरी दुनिया के किसी कोने में जाके भी देख सकते हो कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो इन माई ओपिनियन क्या है कि थोड़ा सा बेहतरी आई है पहले से, नई जनरेशन जिस तरह से आ रही है उनमें इम्प्रूव है माइंडसेट, वो स्मार्ट है, उनको पता है कि रिलीजन वो रिलीजियस है, पहले से ज़्यादा रिलीजियस है जब जो नई जनरेशन है वो, लेकिन इसके बावजूद भी वो ओपन माइंडेड है। पर कई लोग इस चीज़ को बुरा भी बहुत कहते हैं कि लाइक आज की जनरेशन बहुत गलत चली गई है, कि लाइक ज़्यादातर अब कोई जो भी पुराने किसी बुजुर्ग से बात करोगे तो उसको ये है कि ये कलयुग का टाइम है, ये सबसे बुरा टाइम है। और देखा जाए तो लाइक कितनी अच्छी चीज़ें हैं। अब तुम्हारे साथ मैं बैठा हूँ, अगर पुराने टाइम में मैं तुम्हें देख के ही नफरत ही तो मुसलमान है। आई थिंक ये आप देखोगे ना, हर जनरेशन का ये सिस्टम है। अब हम भी जब बड़े होंगे ना तो हम भी बोलेंगे यार ये नई जो नस्ल है ये तो लाइक सही नहीं है, ठीक है ना, ये तबाह हो गई है, ये हो गई है। तो वो हर कोई जिस जनरेशन से होता है ना, जब वो अगली जनरेशन को यही समझते हैं कि ये तो किसी काम की जनरेशन नहीं है, टिकटॉक की जनरेशन है, फलानी जनरेशन है, ठीक है। तो ये तो हमारा अपना बायस है कि हम अपने आप को समझते हैं कि हम ही स्मार्ट है, बाकी तो ये नई जनरेशन तो इनको तो कुछ पता ही नहीं है। बाकी आई थिंक मेन रीज़न ये है कि आज हम इस बारे में बात भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा पीछे जाके भी देखें, जहाँ आज के टाइम में भी अगर कोई लेट्स से कि कोई 2 कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई हो रही है, जहाँ फिर 2 देशों के बीच में हो रही है, जहाँ 2 रिलीजन के बीच में हो रही है, इसमें जो हेट्रेड है ना उसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्ट होता है हर टाइम पे। अगर आप देखोगे, एक तो ये हो जाता है कि अगर लेट्स से कि आज कुछ इंडिया में अगर कोई पॉलिटिशियन ऐसी बात कर रहा है कि हमने एक कम्युनिटी को टारगेट करना है, अगर लोगों को इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया हुआ है और उनका मन अगर वो उस चीज़ में मान गए कि हाँ भाई हमारे साथ ये कम्युनिटी गलत कर रही है तो इनके साथ भी होना चाहिए, तो वो जो बंदा पावर में उसको एक वो छूट मिल जाती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर लोगों के मन में हेटरेड ना हो और सभी लोग उस चीज़ को अपोज कर दें कि भाई ये गलत हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नफ़रत की वजह से हुई हैं, जो कम हो सकती हैं। अभी उसकी एग्जांपल जैसे हम इंडिया की बात भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हैं वहाँ से, राइट। तो जैसे आपको भी अभी पता है, इनको भी पता है कि जो 1984 में सिखों के साथ हुआ दिल्ली में, राइट, जो गवर्नमेंट के नंबर हैं वो कुछ बोल रहे हैं 2-3 हज़ार या 4 हज़ार बंदा मारा है, बट जहाँ पे ऑफिशियली जितना मैंने पढ़ा है, जो ऑफ कोर्स हम थोड़ा उस पर ज़्यादा यकीन करते हैं कि नंबर 10,000 से भी ज़्यादा था। तो
अब वही है ना लाइक कि कितनी ज़्यादा लाइक हेट्रेड होगी किसी के मन में कि अगर लेट्स से कि 2 सिखों ने प्रधानमंत्री को मार दिया, तुम ये बोल सकते हो कि यार वो 2 सज़ा डिज़र्व करते हैं, उन लोगों ने मारा, ठीक है, आप उनको जो भी तुम्हारी लीगल सज़ा है आप उनको दे दो। बट जस्ट बिकॉज के 2 सिखों ने वो स्टेप ले लिया तो आप जाके सड़कों पे लाइक लोगों को जिंदा जला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो वो हेट्रेड की वजह से हुआ। और वो हेट्रेड उस टाइम पे मीडिया ने फैलाई, इवन लाइक जो उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर था उसने फैलाई। बट वही है ना, लोगों के मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ होगी, इसीलिए वो इतना ज़्यादा ट्रिगर हो गए। अभी सेम चीज़ें लाइक इसके बारे में इसलिए भी बात कर रहे हैं बिकॉज अभी अगर उसको पैलेस्टाइन के साथ हम कंपेयर करते हैं, और बहुत सारी वीडियोस ऐसी आई हैं जो लोगों की, जैसे जो अभी इज़राइल के लोग हैं वो इस चीज़ पे वो इतना बुरा फील ही नहीं कर रहे कि छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं इस चीज़ में। वो लिटरली कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ऐसी ऐसी बातें भी बोल रहे हैं कि हाँ भाई इन लोगों ने पहले अटैक किया, कि ये लोग डिज़र्व करते हैं। तो बात वो आ जाती है कि अगर वहाँ के लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो जो वहाँ का लीडर है उसके मन में वो कुछ डर ही नहीं रहेगा कि कल को मेरी पावर जा सकती है, जहाँ आ सकती है, राइट। तो सिमिलर चीज़ है कि अभी मुझे लाइक ये बात इसलिए भी कर रहे हैं कि अभी मैं लाइक सोचने की बात है, अगर कोई ऐसा लीडर है इंडिया में जो थोड़ा इस्लाम के अगेंस्ट बोल रहा है, कल को अगर कोई नॉर्मल मुस्लिम उठ के अगर उसको कुछ कर दे, उसके ऊपर अटैक कर दे, कि क्या हम बोल सकते हैं ये गारंटीड के साथ कि सही होगा कि सिर्फ उसको सज़ा मिलेगी बाकी मुस्लिम को नहीं मिलेगी? जिस हिसाब की लाइक सिचुएशन बन रही है बहुत ही ज़्यादा नहीं कर रहे हैं किसी को, हाँ, पर लुकिंग एट द हिस्ट्री के जैसे 2 सिखों के एक्ट पे सही था या गलत था, उस एक्ट पे सारी ही कम्युनिटी को टारगेट कर दिया गया था 1984 में। ऐसे ही अब गांधी को किसी हिंदू ने मारा था तो सज़ा सिर्फ उसको मिली। राजीव गांधी को हिंदू ने मारा था तो उसको सज़ा से हुई, मगर जब सिखों ने जब मारा तो पूरे सिखों को सज़ा मिली। आज मैं गारंटी देता हूँ कोई मुसलमान मार दी, इससे बड़े दंगे नहीं होंगे इंडिया कि लाइक सारे मुसलमानों पे अटैक हो जाएगा। आई थिंक एक तो ये कि एक ग्रुप माइंड सेट भी है कि एक टीम का जो है ना, जैसे स्पोर्ट्स की टीम होती है कि भाई वॉरियर का फ़ैन है तो वो वॉरियर का फ़ैन है, ठीक है। अगर वॉरियर कुछ गलत भी कर रही होगी ना वो उसको डिफेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसा है कि आप अगर मोदी की पार्टी से, ठीक है, बीजेपी से, ठीक है, तो आप जो भी, अगर मोदी कुछ गलत भी काम कर रहा होगा ना वो आप उसको भी डिफेंड करोगे, ठीक है। और सेम गोज़ के लेट्स से अगर पाकिस्तान से हो, ठीक है, तो अगर वो पाकिस्तान वो अपने आप के ऊपर कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान को कोई गलत काम करेगा ना पाकिस्तान में तो वो पर्सनली ले लेगा कि यार ये नहीं, मैं डिफेंड करना है इसको, ठीक है ना। तो एक हमारा अपना माइंड सेट है कि हमने अपनी टीम को सपोर्ट करना है, कुछ भी हो जाए टीम को सपोर्ट करना है। वही कह सकते हैं कि लाइक जितनी भी पॉलिसीज़ हैं आप उनको सपोर्ट कर लो कि कुछ गलत हो रहा है, बट एटलीस्ट अपने लोगों के एट द एंड हम सब ह्यूमंस ही हैं। अगर आपके मन में लाइक इतनी ज़्यादा हेट्रेड आ गई है कि अगर आपके सामने कोई बंदा मर रहा है और आप फिर भी लाइक ये बोल रहे हैं कि हाँ कोई बात नहीं ये डिज़र्व करता है, वहाँ पर जाके ये सिचुएशन पूरी गलत हो जाती है। तो अभी आई थिंक हमने थोड़ा इंडिया की सिचुएशन पे इनफ बात कर ली है, तो यहाँ से आई थिंक इट्स गुड टाइम कि अभी हम थोड़ा सा जो हमारा आज का मेन टॉपिक है इज़राइल और पैलेस्टाइन का, थोड़ा उस साइड जाते हैं।